First of all, I request you all to please switch on your cameras. Students, I request you all to please switch on your cameras. And those who have named as the mobile device name or their any device names, please rename yourself with your original name. Okay, so I can see a student named as Samsung SM. Please rename yourself. And if you are unable to do so, please drop your name in the comment section, so like the chat box, so that I can rename yourself. Okay, so now we can officially start. So good evening to all of you. I hope you all are doing well. So first of all, I'll introduce Truwelly Technology to you all. So, Story Technology Private Limited has a successful track record in the field of academia, research, training, recruitment, and job assistance since its inception in 2018. We also offer training and internship for all levels of the professional world. It starts from plus two level to a seasoned professional. We in Strawberry Technology emphasized academic and research development, as no civilization can survive without education and can't progress without research. We work with each applicant to prepare them for employment ready. Stowelly technology bridges the gap between employer and employer via industry or product specific selection and pre-employment training. Just for a quick look, I am sharing my screen and showing you all the unique services which we Stowelly Technology Private Limited family holds. So I'll be sharing my screen now. So I hope my screen is visible to you all. Okay, so these are all the services which we provide at Suveli Technology. For a learning and teaching platform, we have Prayog. So we provide comprehensive courses here. And for internship and training programs, we have Stu Intern, where we offer hands-on internship programs. And then we have Professional Resume Builder, which is an AI resume builder, which is Resume Ocean. And for personalized career guidance and job search portal, like we have Navrojan. For for education, like for searching for schools, colleges, we have Vidyapun. For psychometric test, we have Sudakshta. For research, we have Anushram. So these are all the services which we offer at Truely Technology. And introducing your trainer to you all. So your trainer for today is Krati Singh. She has over 4 years of experience in digital marketing field, and she has experience worked in various fields of digital marketing like SEO, SMO, Google AdWords, and Google UAC. So over to you, Krati ma'am. And students, one thing more, please try to be very interactive during the session. So if your trainer asks something to you, please respond to her. Okay, over to you, ma'am. Hello. Thank you so much, Arzu, for the introduction. So before starting, I just wanted to ask to students they are comfortable with English or with the Hindi, so that I can continue according to that.
Anybody, if both. Okay, so hello everybody. Like Arzu already introduced me, my name is Krati Singh, and I'm here today to give you training related to some how does digital marketing work, how digital, what are the steps to you have to do while doing the digital marketing, what are the digital marketing strategies. Okay, so I guess there are few people that are comfortable in English and few are comfortable with both. So Arju, could you please suggest me, should I go with English only, or You can use both of them, like you can use both like Hindi. is there any student that are not comfortable with Hindi? Yes, there is a student. He or she messaged me directly that they are comfortable with English only. So like you Okay, can go with English in that case. fine. Okay, so I'm sharing my screen. My screen is visible to you all? Yes, And I request, yes, yes. I request students to please answer me. If they can unmute themselves and then they can answer or they can interact, because then it will be more interesting session. Otherwise, I will speak and other people will not gonna get what I am trying to say. So yeah, so let's start the session. So today's session is about the step-by-step digital marketing strategy. Okay, so like I just wanted to start with, when some client come to you, or some client come to any of the agency, let's see, when you start doing jobs after the completion of some certification. So this, yes, somebody wants to say something. Somebody raise their hand. Mr. मैम Parvez. हिंदी में बोलिए ना। Okay. uh fine. I'll try to maintain both. So ओके, सो बेसिकली हम जब कोई कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो दे विल आस्क कि हमको डिजिटल मार्केटिंग करानी, दे वांट कि आई वांट माय बिजनेस टू बी विजिबल ऑन ऑनलाइन। सो उसके लिए किस तरह से एक पर्टिकुलर एजेंसी और अ फ्रीलांसर और अ डिजिटल मार्केटर प्रोसेस करता है, उसके बारे में आज का पूरा सेशन है। और कौन कौन से रोल्स और कौन कौन से जॉब रोल्स इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो हम फ्यूचर में जा सकते हैं जिन roles के अंदर। I'll explain this again if somebody don't understand. So today we'll get an understanding about digital marketing strategy and what are the key roles, key job roles that make the whole digital marketing works. Okay. सो बेसिकली व्हाट इज अ डिजिटल मार्केटिंग प्लान? क्या है डिजिटल मार्केटिंग का? जब कोई प्लान बनाया जाता है किसी भी बिजनेस के लिए, तो वो किस तरह से बनाते हैं? क्या चीजें उनमें इनिशियली हमें सोचनी चाहिए एज अ बिजनेस? what are the things we need to consider while getting a proper digital marketing plan? What are the goals we have to decide? What are the KPIs, key performance indicator, we have to decide? क्या क्या हमें गोल डिसाइड करने चाहिए? कौन कौन से ऐसे मैट्रिक्स हैं जो हमको डिसाइड करने चाहिए? उसके ऊपर विल डिस्कस। ओके, Kumar Vijay, yes, please tell me. Yes, sir. Ma'am, sorry to disturb you. See, I am actually doing my planning to do my own business. So I want to do Okay, the all the digital related works on my own. So I think, okay. since you told this is applicable for the business clients only, so it should be Yes. applicable for me also. Or specifically, is there anything for me alone? And sir, so the thing is, आज का जो session है, today's session is basically related to what are the strategies we have to follow Understood. if Yes. हाँ, we Yes. have to follow. Yeah. Like, it Correct. depends what your business is about. So you have to Mm. like change the strategy according to that. But there are few fixed things that we need to understand before starting digital Mm. marketing or a digital presence, creating digital presence for our businesses. See, sir, होता क्या है usually? You are comfortable with Hindi? Little, but English is very Okay. comfortable. Okay, English is very comfortable. So, see what happens sometime people just want ki, I want to be my business to be on the digital platforms like social media, SEO and everything.
but they don't understand how which platform. See, there are different platform on social media. There are different way of doing SEO, but we have to understand how we on which platform we have to go, or which platform we don't need to be there. Okay, it depends whether your business is B2C, B2B. So this today's session is about how you have to create your business digital marketing strategy. Depends on what type of business you are running. Super. Okay. Thank you. Okay, Sure. okay. Yes, Start Arzu. Kriti. Kumar Ajay, you can contact with our admin team like for more business related like details if you want to. So so currently we will focus on what is today's topic, and like all of you are requested, if you have queries, just raise your hand, or you can ask your queries at the end of the session, or you can write it in the chat box. Okay. Okay, thank you so much, Arzu. Yeah, yeah. After completion the session, you can ask the questions. We'll take a question session also. Like if somebody have any query regarding anything, they can ask. Okay, so today's session is basically an overview of digital marketing strategies and the key roles in the digital marketing. So it will be beneficial for somebody who's already in the in the course, or somebody who is new with this. Okay, next. So understanding a digital marketing. So digital marketing as a utilization of digital technology. अब इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं. Thus there are aspects like social media, then search engine, then the mobile application. But the most important thing we have to understand that for digital marketing करने के लिए definitely first we need a proper website. अब नाउ वेबसाइट की जब हम बात करते हैं, तो वो भी डिपेंड करता है कि व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर ओनिंग. लेट्स सी यू हैव ई कॉमर्स, you want to start a e-commerce business. Okay, so for that there are different platform that we can create a website, or you can create a proper coding website. So platforms like there are platform for WordPress, WooCommerce is there, Shopify is there. These platform can help you to create e-commerce website very easily. Obviously, you need a developer for that. But before starting in a digital journey of your brand, you have a proper website with you so that it will help you to grow. Some people come to us, some client comes to us and say that we don't have any website, but we want to create a social media presence. Okay, it's fine, it's great, we can do that, but at some point you need a website. So first of all, there are a few things like website, then you can go for social media, then search engine is there, email marketing is there, and if your website if your brand has their own mobile application, so there is a proper strategy for mobile development, for mobile application. मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑर्गेनिकली भी हम प्रमोट कर सकते हैं, और एड्स के थ्रू भी हम प्रमोट करते हैं. दिस इज समथिंग फ्यू पीपल आई डोंट नो और जानते हैं या नहीं जानते. मोबाइल एप्लीकेशन जो होती हैं उनके ऊपर भी एड रन होता है. अब होता क्या है, कैसे होता है, लेट्स सी अगर कभी आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, सो प्ले स्टोर पे यू कैन सी इफ लेट्स सी यू आर लुकिंग फॉर सम एप्लीकेशन और समथिंग लाइक ट्रैवल से रिलेटेड और समथिंग लाइक दैट, और एनीथिंग आप सर्च करेंगे, यू कैन सी देर आर फ्यू स्पॉन्सर एड यू कैन सी ऑन द प्ले स्टोर और द एप्पल स्टोर. So these are run via Google Ads. Okay, so ये भी एक तरह का, मैं बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट में आता है. देन वाई पीपल गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, क्यों जाना चाहिए? दिस इज वेरी बेसिक थिंग आई एम टेलिंग, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेटली एक रीच के लिए, वाइडर ऑडियंस के लिए पीपल गो पिक डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग फॉर देयर ब्रांड्स. कॉस्ट इफेक्टिव, हाउ कॉस्ट इफेक्टिव? कॉस्ट इफेक्टिव किस तरह से है? डेफिनेटली लेट्स सी, you want to run ad for like local ad, like newspaper ad you want to run. The costing that come as on newspaper ads or any kind of traditional ads is way too high, and the thing is you cannot measure the results. So it's a very expensive thing, but still you can't measure the result. You cannot understand कि किसके पास मेरा ad गया है, किसके पास मेरा ad नहीं गया है. ओके, सो देन उसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आजकल लोगों को और कह सकते हैं हम
पुश कर रही है कि वो अपने ब्रांड को डिजिटली एक अच्छा प्रेजेंस क्रिएट करें, दैट इज इंटरैक्टिवनेस. what does that mean? Let's see, you are running an e-commerce ऑनलाइन स्टोर, ओके, एंड आपको आपने कुछ एड रन किया एंड या फिर आपने कुछ पोस्ट किया रिगार्डिंग योर ब्रांड एंड प्रोडक्ट, और somebody wants to buy that. So what they can do, they can either click directly on the link that you give on the ad or on the post. Either they can text you or they can ask how they can make the purchase. That is not possible in old traditional way of marketing. Now people can directly ask that directly to the brand, and if they have any complaint, any query, they can directly comment that particular brand's post, reel, or anything. Okay. Then accurate targeting. Okay, so in digital marketing होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए आपका ब्रांड है ज्वेलरी का, ओके, एंड आपको टारगेटिंग करना है, आपको एड रन करना है अपने ब्रांड के लिए, अपने एक ई कॉमर्स ब्रांड के लिए. सो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन रन एड इन अ प्रॉपर टारगेटिंग वे. लेट्स सी you have some criteria, like you want to promote your brand to women, and the woman who earn XYZ ratio of money, and the woman जो रिटेल ऑनलाइन परचेज बहुत फ्रीक्वेंटली करती हैं, एंड जिनका इंटरेस्ट मिंत्रा की वेबसाइट या कुछ और ज्वेलरी रिलेटेड वेबसाइट में रहता है, या और वुमेन जो कि अर्बन एरियाज में ज़्यादा रहती हैं. इस तरह से यू कैन मेक द प्रॉपर डिटेल टारगेटिंग, बट दिस इज पॉसिबल ऑन मेटा एड्स, somehow it also possible in Google ads, that we'll talk about in further classes. But today what I'm trying to say, you can do the accurate targeting. किस तरह का आपका क्लाइंट बेस है, उसको आप रिसर्च करके वाया एड्स आप प्रॉपर उसको टारगेटिंग कर सकते हैं. ठीक है, जैसे ही आप उसको टारगेटिंग करेंगे, तो जो मान लीजिए फॉर योर बजट इज 1,000 रुपीज पर एड, जस्ट एन एग्जाम्पल, सो दैट उसका वो 1,000 रुपीज का जो आउटपुट निकल के आएगा, वो बहुत ही यू कैन से कि बहुत उसका रेशो बहुत बेटर हो सकता है एज कंपेयर टू अदर वे ऑफ मार्केटिंग. सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू आर प्रमोटिंग योर ब्रांड ऑनलाइन. If you want to promote your brand offline, the things are different. Okay. Now let's come to step by step way to create a digital marketing strategy. So let's एक hypothetical situation लेते हैं, and you are doing आप जॉब कर रहे हैं या आप कोई फ्रीलांसर हैं, और कोई ब्रांड आपके पास आता है कि मुझको डिजिटल मार्केटिंग करानी है मेरे पर्टिकुलर बिजनेस के लिए. आई वांट टू डू द डिजिटल मार्केटिंग फॉर माय ब्रांड. So what you have to do you start, like you just say, okay, we'll do SEO, we'll start with social media, okay, we'll do that. No, you will do that, these things, but first there are few other aspects that you have to understand, or you want your client to make understand these things. Okay, so let's see what you have to do, or what the brand have to do to create a digital marketing strategy. Before, there are few steps. So first of all, मोस्टली लोग किस चीज़ में लैग कर जाते हैं आजकल, जितना मैं स्टडी करती हूँ डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया हो गया या सर्च इंजन्स हो गए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि अच्छे हैं, बट उनका कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट नहीं होता है. ओके, लेट्स सी, देर कोई ब्रांड है जो बहुत अच्छे शूज़ बनाता है, और उसका शूज़ का ना सोल बहुत अच्छा है. सो वॉट समटाइम क्या होता है कि लोगों ने उस पर्टिकुलर ब्रांड ने दे स्टार्ट प्रमोटिंग द शू, and it's like, okay, this discount, that discount, this pattern, that color, but what they should focus on their unique selling points, जिसको हम USP भी कहते हैं. So that उससे होगा क्या, I'll give you an example. There is a brand name Frigo, I guess. वो what that brand do, वो comfort के ऊपर बात करता है. they have a different products. What type of product they sell soles for the shoes, they sell back pillows, they sell the sitting pillows or something. So what these brand are doing, they are focusing on
particular comfort, like they what they say कि उनका सोल इतना परफेक्ट है दैट वो आपका अगर पैरों में पेन रहता है या आपका बैक में पेन रहता है ड्यूरिंग द लॉन्ग सिटिंग्स, their soul, their back pillows will help you. Okay, so this is what we called unique selling point, or you can say the unique thing of your पर्टिकुलर ब्रांड. सो सबसे पहले ये चीज समझना, और यूं कह लीजिए ये चीज किसी ब्रांड के अंदर से निकालना बहुत जरूरी है. सी, एवरी ब्रांड हैज देयर ओन सेलिंग पॉइंट. इफ दे डोंट, दे हैव टू क्रिएट अ पर्टिकुलर सेलिंग पॉइंट. हो सकता है देयर आर फ्यू ब्रांड्स जो कि एक्सपेंसिव हैं बट दे गिव ग्रेट कंफर्ट, है ना. एक कुछ ब्रांड ऐसे हो सकते हैं जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस में हो. लाइक आई एम जस्ट रिसेंटली स्टडिंग अ केस स्टडी ऑफ, देयर इज अ शू ब्रांड दैट रिसेंटली केम अप, कॉन आई गेस कॉमेट, हाँ. सो ये प्रिडिक्शन लगाया जा रहा है कि वो ब्रांड ऑलमोस्ट नाइकी को टक्कर दे सकता है इन फ्यूचर. उस ब्रांड ने किया क्या? वो दैट ब्रांड इज नॉट एक्सपेंसिव, नॉट दैट मच एक्सपेंसिव, बट स्टिल दे आर मेकिंग द प्लेस इन द मार्केट. हाउ? ऑब्वियसली थ्रू देयर डिजिटल मार्केटिंग. बट इट्स नॉट लाइक कि हमने सोशल मीडिया कर लिया, एसईओ कर लिया और हमारा ब्रांड चल जाएगा. नो, यू राइट नाउ टुडेज सिनेरियो, audience or users are extremely smart. So what you have to do, you have to give something different that other brands are not giving to that to the user, or maybe you are giving the same but still in a some unique point. अब बात करें, हम स्विगी की बात कर लेते हैं. स्विगी का स्विगी मार्ट जो चलता होता है, एंड देर इज अ ब्लिंकिट एंड देर इज जैप्टो. व्हाट ऑल दीज ब्रांड्स आर डूइंग, सब सेम ही चीज कर रहे हैं. वो हमको जो हमारे डेली एसेंशियल्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनको जल्दी डिलीवर कर देते हैं हम तक. यही चीज कर रहे हैं, बट स्टिल दीज थ्री ब्रांड्स आर स्टैंडिंग अलोन in the market, and they're capturing a very good market, and they're very competitive to each other, but they're giving the same thing, but they have a different USP for their own. So this is how you have to understand that you have to define your brand, or you have to create a unique selling point for your brand, or you should have you understand the unique selling point of your brand. Okay, next. Okay. देन डिफाइन द गोल. ये बहुत एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत सारे ब्रांड है ना मिस कर जाते हैं कभी कभी, कि किस तरह से हम अपना ऑनलाइन में गोल डिसाइड करें. ठीक है, अगर हम जैसे अगर एज अ डिजिटल मार्केटर में बात करूं, तो अगर व्हेन वी आस्क क्लाइंट्स कि व्हाट्स योर गोल, क्या चाहते हैं आप, मतलब क्या सोच रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग करते टाइम, मैम वो ना हमारे को हमें वी आर फोकसिंग ऑन सोशल मीडिया पे ना हमारा फॉलोअर्स बढ़ जाए बहुत सारे. अच्छा, ओके, एंड हाउ यू आर प्लानिंग टू डू दैट? वो तो वी डोंट नो. और हाउ मच परसेंटेज यू वांट टू इंक्रीज योर फॉलोअर्स? मैम आप देख लीजिए, एक महीने में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं और लाइक्स बढ़ सकते हैं. अब द पॉइंट इज, यहीं पे सबसे बड़ा इशू आ जाता है. ब्रांड्स अंडरस्टैंड नहीं करते हैं कि जस्ट बिकॉज दे एग्जिस्ट ऑनलाइन, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दुनिया उनको देखने लग जाएगी. ओके, सो दे हैव टू क्रिएट अ स्ट्रैटेजी सबसे पहले. सो उनको ये गोल डिसाइड करना इंपॉर्टेंट हम एज सजेस्ट करते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर. और एक ब्रांड को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसको किस स्पीड से ग्रो करना है. अब बात आती है कि वो सब चाहते हैं एक महीने में 5,000 रुपये लगा के 5 लाख की सेल. बट इज दैट पॉसिबल इनिशियली? नो, इट्स नॉट. इट मे बी पॉसिबल इन डाउन द लाइन ऑफ 6 मंथ्स. बट एक ब्रांड जब इंट्रोड्यूस हो रहा है या एक नया ब्रांड है जिसने ऑनलाइन अपने आप को, ये जो स्ट्रैटेजीज पे हम बात करें ना, बेसिकली वो क्या है, जब एक ब्रांड एक कह सकते हैं आप अपना ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है, तो हमें किस तरह से उसके ऊपर वर्क करना चाहिए. तो जब सबसे पहले हमने बात करी कि हम वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूनिक थिंग, यूनिक पर्सोना और यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ अ ब्रांड. हमें एक ब्रांड का पूरा डिफाइन करना जरूरी है कि हम क्या मार्केट से अलग दे रहे हैं. अनदर थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड और वी हैव टू डिफाइन द गोल्स. व्हाट आर द गोल्स
डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या, या ऑनलाइन प्रेजेंस जब हम क्रिएट करने की बात करते हैं तो हमारे टेक्निकली लेवल पे क्या गोल्स होने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मेरी वेबसाइट है तो भाई मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ये 10 कीवर्ड्स हैं, और या मैंने उसको 10 कीवर्ड्स मैं हमने क्लाइंट के लिए निकाले, और इसके ऊपर वो चाहता है कि एग्जाम्पल 30% ट्रैफिक बढ़े नेक्स्ट 6 मंथ। ठीक है, या फिर लीड जनरेशन सर्विस बेस्ड कोई कंपनी है, तो वो ये चाहती है, लेट्स सी दे वांट टू जनरेट 100 लीड्स पर मंथ, 50 लीड्स पर मंथ, 500 लीड्स पर मंथ, जो भी feasible होता है, बट दे हैव to, or a brand have to understand, or they have to set a particular goal, how much they want to grow in future via digital marketing. What else they should decide, how much traffic they want to increase, how much sale they are expecting. ओके, सो होता क्या है अभी मार्केट में, जब लोगों को नॉलेज नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग का, व्हाट दे वांट कि आज मैंने सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाया, आज मैंने वेबसाइट बनाई, और कल मेरी रैंकिंग आ जाएगी, और परसों मेरे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। सो इससे क्या नेगेटिव एस्पेक्ट चला जाता है, इससे ये हो जाता है कि सोशल मीडिया की अगर मैं बात करती हूँ तो लोग क्या करते हैं, फिर फेक फॉलोअर्स खरीद लेते हैं। ठीक है, फिर एड चला के व्यूज बढ़वा लेते हैं। इज दैट रियली वर्थ इट? नो। व्हाट अ ब्रांड हैव टू फोकस ऑन, डेफिनेटली ROI, एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ एड्स, द ब्रांड नीड टू focus on ROAS. And what is ROAS? ROI, I guess you everybody understand, that is return on investment, and ROAS is return on ad spend. There are two things in digital marketing. One way of doing digital marketing is organic, and another way of doing digital marketing is paid. Okay, organic में आता है SEO, जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, और अभी एक और टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस होने लगी है इंडस्ट्री में, जिसको हम ASO कहते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि AI ऑप्टिमाइजेशन और AI सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन काइंड ऑफ। सो क्योंकि हम AI का भी रिजल्ट गूगल दिखाता है, सो वो बाद में बात करेंगे, बट राइट नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट कि how much goal you are setting for your brand. Okay, and then you have to ensure that you should measure that goal. चलिए, मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे इतने फॉलोअर्स आई वांट और इतना रैंकिंग आई वांट फॉर माय ब्रांड। देन इसी के लिए हम करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग, जो हमारी ऑलमोस्ट हर वीक होनी चाहिए। कई ब्रांड्स हैं जो हर मंथ रिपोर्टिंग पे काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट, and there is conversion rate. Huh? Okay, last point, conversion rate. The thing is, conversion is not, in digital marketing, conversion is not always sales. Okay, it depends on brand. Let's see, you want to generate inquiries, so for you a conversion would be inquiries, or calls, or anything else. And some brand the conversion could be sales, and for some brand the conversion could be maybe comments or something, or anything. Or for some brand they want a conversion initially कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐड टू कार्ट हो जाए अगर वो ई कॉमर्स है तो। ठीक है, या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ डाउनलोड्स, हाँ एप्लीकेशन आपकी है तो आपके डाउनलोड्स बढ़ जाएं। इनिशियली ज़रूरी नहीं होता कि आपका कन्वर्जन सेल्स ही हो। बहुत तरह के डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्जन्स होते हैं। जब हम आगे इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि क्या, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कन्वर्जन दैट यू कैन क्रिएट फॉर योर ब्रांड अकॉर्डिंग टू योर जो भी आप अचीव करना चाहते हो थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट इज, लास्ट वन इज ईमेल मार्केटिंग कैंपेन। ओके, सो अगर आप अपना सारी चीज़ें के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं तो ईमेल मार्केटिंग भी एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का पार्ट है। ऑल्दो आजकल भी ये किया जाता है, बट इट्स नॉट दैट इफेक्टिव। इट्स एक्सट्रीमली पुश स्ट्रैटेजी। व्हाट इज पुश स्ट्रैटेजी? व्हेन आप अपने पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में सारी चीज़ें जब फोर्सफुली यूज़र को भेज रहे हैं या दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, okay, the most important thing that people usually miss, that's know your target audience. Okay, अब बात आती है कि लोग कहते हैं कि हमें पता है मैम, हम तो टारगेट ऑडियंस क्या, हम तो चाहते हैं सबको दिख जाए ऐड,
सबको मेरा वेबसाइट दिखे, जिसकी मन करेगी खरीद लेगा, और नहीं तो दिख तो जाएगा, नॉलेज तो रीच तो हो जाएगी, ओके दैट्स फाइन। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस तरह से आप कभी भी एक प्रॉपर रिजल्ट अपना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर नहीं लेके आ सकते। तो आपको समझने की बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझें, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ ऑडियंस यू वांट टू टारगेट। ओके, लेट्स सी, let's take an example of a travel company. Okay, so there is a travel company hypothetically, and that travel company situated in Dubai, and they offer different travel packages. So, what type of audience they should target? One, they have to decide ki either they want to target in Dubai only or worldwide level. So initially when some brand their starting their digital marketing journey, what we suggest them कि आपको initially you should focus local level पे, जिसको हम SEO की लैंग्वेज में लोकल SEO कहते हैं, या हम एड्स में भी बात करते हैं तो हम ट्राई करते हैं कि हम लेट्स सी अगर दुबई है तो हम दुबई के ही एरियाज को फोकस करें, जयपुर है तो हम जयपुर के अंदर जो मेन एरियाज है जहाँ पे मेरा सामान लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं या मेरे से इंक्वायरीज आ सकती हैं, वहाँ पे हम फोकस करें। इंडिया में फोकस कर रहे हैं तो हम देखें कि हमारा ब्रांड किस तरह का है। अगर मेरा ब्रांड ऐसा है जो कि छोटे शहरों में चलेगा, दैट विल रन इन स्मॉल सिटीज, दैट विल बी सक्सेसफुल इन स्मॉल सिटीज, तो वी शुड स्टार्ट विद स्मॉल सिटीज। We should never ever focusing on the whole country. Okay, when people do that, लोग करते हैं ऐसा, एंड दैट्स ट्रू। जब लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, व्हाट पीपल डू, पीपल रन एड्स, और एड रन करके वो क्या करेंगे टारगेटिंग में, अच्छा सारा पूरी हिंदुस्तान में दिखाना चाहते हैं हम तो ऐड, या हम इतनी 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 10-20 सिटीज के अंदर अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। उससे होगा क्या? ऐड तो दिखेगा, ऐड दिखने में कोई मना ही नहीं है, बट क्या मुझे रिजल्ट आएगा? क्या जिस ऑडियंस को मैं अपना प्रमोशन करना चाहती हूँ, क्या आएगा? नहीं। सेम एसईओ के ऊपर अगर मैं जाऊं तो मैंने कीवर्ड्स ऐसे ले लिए जहाँ पे भाई मैं तो पूरा इंडिया टारगेट के बेसिस पे चल रही हूँ, तो मेरा रिजल्ट आएगा ऑब्वियसली, बट टाइम लगेगा। तो इनिशियली हम एसईओ के अंदर भी कोशिश करते हैं कि लोकल एसईओ करें, हम ऐसे कीवर्ड्स लें जो हमारे सिटी को कवर कर रहे हों, समथिंग कीवर्ड्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जयपुर, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी दिल्ली, इस तरह से अगर हम करते हैं इनिशियली तो दैट विल हेल्प अस टू ग्रो। ओके, देन उसके बाद बात आती है कि हम किस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं। जेंडर डेफिनेटली, कभी कभी कुछ ब्रांड्स होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम मेल फीमेल दोनों को फोकस करते हुए रन कर रहे हैं। कुछ ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर ही फीमेल फोकस होते हैं, सॉरी, एंड कुछ ब्रांड्स होते हैं जो कि मेल ओरिएंटेड भी होते हैं, एंड देयर आर ब्रांड्स ऑब्वियसली, देयर आर मिक्स मैच। सो वो चीज़ भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। देन देन उसके बाद जो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, दैट्स हॉबीज, लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट, वैल्यू। अब ये क्या है? और ये आप अगर सोचते होंगे कि ये इन चीज़ों को मैं किस तरह से टारगेट करूंगी, अगर मैं एसईओ कर रही हूँ या मैं कोई और डिजिटल मार्केटिंग एक्टिविटी कर रही हूँ, तो इनको मैं कैसे टारगेट करूंगी फ्यूचर में? तो मेरे को ये समझना जरूरी है। इंटरेस्ट मतलब वी हैव like proper categories in when we are running on Google or in Meta or other social media platforms or Google platform, सो सर्च इंजन प्लेटफॉर्म। सो बेसिकली वहाँ पे एक प्रॉपर लिस्ट होती है इंटरेस्ट की, आपको किस तरह के इंटरेस्ट के लोगों को टारगेट करना है। आप चाहते हैं कि लोग जो फ्रीक्वेंट बायर्स हों, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते हों, अगर आपका ट्रैवल कंपनी है तो, या जो भी आपका, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड किस तरह का है। ठीक है, मैं ट्रैवल का एग्जांपल ले रही थी, तो लोग जो फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हो, मान लीजिए जो अच्छा स्पेंड कर, अगर मेरा एक्सपेंसिव पैकेज है तो मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ टारगेट जो जिनका इंटरेस्ट लग्जरी ट्रिप्स में होता हो। ठीक है, हॉबीज़ की मैं बात करती हूँ, हॉबीज़ यानी जो लोग ट्रैवल रील्स ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं। लाइफस्टाइल यानी जिनका थोड़ा लग्जरी लाइफस्टाइल है। ये कैटेगरीज हमको ऑलरेडी मिल जाती हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको फोकस किस पे करना है। ठीक है, अब वो कैसे समझ में आता है? वो बेसिकली ऑब्वियस सी बात है, वो हमें अपना
ब्रांड को सोचते हुए ही समझ सकते हैं। देन बिहेवियरल सेगमेंटेशन इज ऑल्सो लाइक एग्जाम्पल, डू दे प्रेफर परचेजिंग फ्रॉम मोबाइल, डू दे प्रेफर परचेजिंग फ्रॉम डेस्कटॉप। सो ये सब सारी जो चीज़ें हैं ये भी इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना जब हम डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। वाइल वी आर क्रिएटिंग अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड what are the preference of your customer. Sometime what happen, I'll give my real life example to you. I used to promote a brand for South African region, South African Eastern region. So what happened? There, the internet speed was not that good, so they don't use Instagram that often, but they use Facebook more as compared to Instagram or TikTok. So what we have to do, we have to create a promotion strategy according to Facebook and TikTok, and on Google also. They moreover focus on Google My Business area. So what we have to do, we run local business ads on Google, or we promote Google My Business page more as compared to the normal SEO. So these are the strategy we have to create when according to the brand. Okay, conduct market research. Obviously, while we are conducting these things, while we are conducting market research, उस time पे ही हमें ये सारी चीजें समझ में आती हैं. ओके, नेक्स्ट इसी के अंदर एक चीज आती है, वो बोलते हैं हम उसे, दैट वी कॉल इट बिल्ड अ ऑडियंस परसोना. ओके, ऑडियंस परसोना और अ बायर परसोना होता क्या है बेसिकली. लेट्स सी कि वेल, बायर persona improve your digital marketing by providing insight into the audience need and preference. Persona as in what is the mindset of that of people for your brand. क्या माइंडसेट आप क्रिएट करना चाहते हैं. मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर सिंगल वुमेन डिफर फ्रॉम दूज द मैरिड वुमेन. अब बात क्या होती है कि आप एक ही स्ट्रैटेजी हर तरह के पर्सन पे अप्लाई नहीं कर सकते. तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आपका ब्रांड किस तरह की ऑडियंस को केटर करता है. उसके बाद वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस ऑडियंस का परसोना हमें किस तरह से क्रिएट करना है. अगर हम ये समझते हैं तो हमें अपना डिजिटल मार्केटिंग प्लान प्रॉपर डिज़ाइन करने में बहुत हेल्प मिलती है. ओके, कुछ एग्जाम्पल से मैं इसको समझाती हूँ. लेट्स से I guess there is a brand. There are few brands. हाँ, there is a brand called Minimalistic. ओके, सो मिनिमलिस्टिक इज बेसिकली उसने अपना जो फोकस एरिया है वो कुछ कुछ काफ़ी ही सटल वे में रखा है उसका. अगर आप पैकेजिंग भी देखेंगे, सो इट्स वेरी सिंपल. लाइक वो सिर्फ वाइट पे ब्लैक टेक्स्ट के साथ अपना पूरा ब्रांडिंग करता है. सो दैट उसने अपना पर्सोना रखा है कि केमिकल फ्री एंड एवरीथिंग, और बहुत ही इफेक्टिव है गर्ल्स के अंदर, वुमेन के अंदर. सो इस तरह से यू हैव टू डू योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड यू कैन मेक अ ब्रांड वाइल डूइंग थिंग्स. एक ब्रांड तभी बनता है जब ऑडियंस उससे रेजोनेट कर पाती है, उससे कनेक्ट कर पाती है. अदरवाइज वो सिर्फ एक प्रोडक्ट रह जाता है मार्केट के अंदर जिसको लोग खरीदते हैं मे बी, बट जो रीपर्चेजिंग रेशियो है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है. ओके, देन फोर्थ पॉइंट, दैट इज कंडक्ट अ कॉम्पिटिटर एनालिसिस. तो इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी. तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस करने के लिए कैसे हमें करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए. तो अगर हम डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इस चीज़ को, तो देर आर टूल्स कि हमको अगर एसईओ का कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना है. कॉम्पिटिटर एनालिसिस मतलब कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है. तो हर चीज़ के लिए कॉम्पिटिटर एनालिसिस अलग तरह से किया जाता है. कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि भाई क्लाइंट को अपना ट्रैफिक इंक्रीज करना है, फर्स्ट ये थिंग है. तो ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए रैंकिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी. फॉर दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि अच्छा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है. लेट्स सी, एक कंपनी है अमेजोन का कॉम्पिटिटर कौन हो गया, फ्लिपकार्ट. तो फ्लिपकार्ट क्या क्या चीज़ें ऐसी कर रहा है ऑन देयर सर्च इंजन, मतलब सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए वो क्या क्या स्टेप्स ले रहा है, कौन कौन से कीवर्ड्स पे वो फोकस कर रहा है, क्या क्या बैकलिंक्स हैं, कौन कौन से जो रेफरल लिंक्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं उसके, ताकि उसका रैंकिंग किसी एक्स पेज के ऊपर बढ़ पाए, सर्च इंजन पे बढ़ पाए किसी पर्टिकुलर लिंक के ऊपर. सो ये एग्जांपल हुआ एसईओ का. ठीक है, अब बात करते हैं सोशल मीडिया की. बात अगर मैं करूं तो सोशल मीडिया पे बात करें तो हमें ये अंडरस्टैंड करना कि अच्छा आज
बहुत ही सिंपल चीज, I'll give an example. Let's see, there is a brand that promoting their corporate environment. Okay, and that brand is a competitor to you, so you should also do that. See, people said ki no, we don't need to copy. No, nowadays you have to copy, you have to follow the trend. If somebody is creating a X video on the X song that is trending, you have to also do that if you want to be the part of that race. Okay, so for that you have to understand the platforms, you have to understand what activities these your competitor is doing. Okay, so for that I'll give you an example via a tool, how you can do a competitor research for SEO or a particular website. Okay, so I'll give you a small example, just short one, थोड़ा फटाफट खत्म करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है, बट एक बार आई जस्ट वांट तो दिस इज अ वेबसाइट जहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर सकते हो, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, काफी सारी चीजें आप कर सकते हैं। मैम मेरे तो हाँ, स्क्रीन पे कुछ शो नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, ओके ओके सॉरी, वेट अ सेकेंड, मे बी द एंटायर स्क्रीन का कुछ इशू था। नाउ इट्स विजिबल, अब हो रहा है? हाँ अभी हो रहा है मैम। हाँ, चलिए, सो ये एक टूल है बेसिकली जिससे हम कॉम्पिटिटिव रिसर्च करते हैं, है ना, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो लेट्स सी, मेरा एक ब्रांड है, कोई एक्स ब्रांड, उसका कॉम्पिटिटर है ये कोई ट्रैवल कंपनी है, मेरी भी एक ट्रैवल कंपनी है और सेम सिटी के अंदर है। और जिन कीवर्ड्स के ऊपर मैं रैंक कराना चाहती हूँ खुद को, या सोशल मीडिया पे जिन चीज़ों पे मैं ट्रेंड करना चाहती हूँ, ये ब्रांड ऑलरेडी करता है, तो मेरा ये कौन हो गया? कॉम्पिटिटर हो गया, ऑब्वियस सी बात है। तो दो तरह से कॉम्पिटिटर जज, सॉरी, सर्च इंजन पे दो तरह से कॉम्पिटिटर जज होते हैं। एक तो ये ऑब्वियसली कि जो ट्रेंड कर रहा है किसी मार्केट के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग वो कॉम्पिटिटर हो गया। बट कुछ कॉम्पिटिटर कैसे डिसाइड होते हैं? लेट्स सी, मेरा एक कीवर्ड है बेस्ट, या मेरा कीवर्ड है दुबई ट्रैवल, सही लिखा है ना? ओके, दुबई, माय कीवर्ड इज दुबई ट्रैवल पैकेज. Let's see, this is my keyword, and there are, okay, make my trip, we should leave this, it's a very big company. Other than that, this brand is coming on the Google on second page, second ranking. Then this is the other web brand, that the website that is coming. So according to search engine optimization, these website become my competitor. Okay, so let's see this brand. We are taking this brand as a competitor research. What we have to do, we have to select, click, post this link here. This is a paid tool although, but you can do some few things free. Okay, so this brand is focusing on the different countries, but my focus is Dubai only. So I will click on Dubai and check. Okay, the brand's organic traffic is 136.3K. What type of keywords they are focusing? We can see this. Okay, these are the keywords. Okay, these are the keywords they are focusing. Fine, and we can check, okay, how much traffic these keyword give this website. Okay, so what we have to do while doing the keyword research, we will do the competitor research simultaneously to check what keywords our competitors are focusing, so that we can also try to focus according to that. What other thing we can see? We can check what are the other organic competitor of this brand, so that if these are the other competitor, that sometime that became our competitors also. There are few other data that is not showing because it's not a paid version, but it's fine. There are other things we can see here. Let's see backlinks. So we can check how many backlinks they have created and on which websites they have created the backlinks. And let's see, this is some website they created a backlink, this is some other. So this is a tool to use the SEO competitive research. Okay, so let's see, I want to do the competitive research for Meta Ads. मेरे को चेक करना है कि Meta Ads पे मेरा competitor क्या रन ऐड करता है। तो एक वेबसाइट है जिसको Meta Library कहते हैं। यहाँ we have to go there, we have to just select
all categories, India, whichever the country we are focusing. We just need to put our competitor user ID. This website automatically, sorry. So this website automatically tell us what type of ad the your competitor is running on social media. So you can take reference from the ads, or you can check how they are focusing. So that will help you to understand, to create your digital marketing strategies also. Okay, so this is a small example. Let's see. My screen is visible, everybody? Something happened. Okay, now No, it's visible. Yes, yeah, yes. it's Now it's visible. visible now. Okay. Okay, next. Yes. So what we are talking about conducting a competitor research. So these are the few tools, and there are so many other tools in digital marketing that we use. अब the point ये आता है कि कौन सा टूल मैं कैसे यूज करना चाहिए. जैसे मैंने अभी समझाया कि अगर मुझे कीवर्ड रिसर्च के ऊपर कुछ काम करना है, मुझे चेक करना है कॉम्पिटिटर भाई किन चीज़ों पे बैकलिंक बना रहा है, व्हाट टाइप ऑफ बैकलिंक द कॉम्पिटिटर इज क्रिएटिंग, व्हाट काइंड ऑफ keywords they are using, what kind of links they are creating, or what type of pages they are focusing. ठीक है, so according to that I can make my strategy also. ठीक है, इसके अलावा ads की बात. Yes. यस मैम, आवर क्वेश्चन लाइक Yes. जब हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं देन जो वॉल्यूम होता है और केडी होता है, तो Yeah. वॉल्यूम हमें लाइक हमें वॉल्यूम ज़्यादा ये लेना चाहिए और केडी जो कम रहता है वो हमें प्रेफर करना चाहिए, या फिर अगर स्टार्टिंग फेज में अगर है अगर कंपनी देन. ओके, सी इसमें ना योर एम इज रिमी. ओके सर, यस रिमी यस. इस सी अभी मैं इसका जवाब दे रही हूँ, बाकी आप है ना जो भी किसी के भी क्वेश्चन है वो राइट डाउन कर लीजिए, तो हम इसको खत्म होते ओके से आई ओके, नो टेक, इशू है ना. मैम. है ना, ओके. बट मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अगर आपने पूछा है तो. देखिए होता क्या है, डेफिनेटली हमें ट्रैफिक ज़्यादा लेना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा लेना चाहिए और केडी कम लेना चाहिए. बट इनिशियल भी हमें यही करना है. बट सम टाइम व्हाट हैपन, मेरा कीवर्ड ही ऐसा है जिसके ऊपर वॉल्यूम है ही बहुत कम. ठीक यस. है, या फिर हो सकता है कि मेरे ओवरऑल एवरेज जो वॉल्यूम आ रहा है ना, जब वो है मतलब बहुत नॉर्मल सा वॉल्यूम आ रहा है, तो अब उसके अंदर हम क्या डिसाइड करेंगे, बट उस वॉल्यूम पे मेरा केडी भी हाई आ रहा है, तो उस सिचुएशन में जो है वो चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं. सी वो टोटली डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का कीवर्ड है. बट इनिशियल जो स्ट्रैटेजी रहती है वो यही है कि हमें डिसेंट वॉल्यूम के साथ कम केडी को प्रेफर करना चाहिए. ओके हाँ, ओके, ठीक है. ठीक है. बाकी डिपेंड करता है कुछ कीवर्ड्स के ऊपर जहाँ पे कंपटीशन भी हाई होता है बट वॉल्यूम भी कम होता है, बट हमारे पास कभी कोई ऑप्शन नहीं होता कि अब क्या कर सकते हैं, मेरा वर्क ही वो है, या मेरा ब्रांड, या मेरा कॉम्पिटे वो मेरा क्लाइंट उसी चीज़ को टारगेट करना चाहता है, तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, सो वी हैव टू वर्क अराउंड दैट. ओके मैम. ओके, या. ठीक है. देन उसके बाद हम बात कर रहे थे वाया डूइंग द कॉम्पिटिटिव रिसर्च. अब ये भी समझ सकते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द अदर वीकनेसेस ऑफ योर ब्रांड, और ऑफ योर ब्रांड, ऑफ और द कॉम्पिटिटर्स ब्रांड. ओके, यू अंडरस्टैंड, यू कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से हम और अपने आप को ब्रांड की हमारी पर्सनालिटी है जो हम बिल्ड कर सकते हैं, जो हो सकता है हमारे कॉम्पिटिटर्स ने बेटर क्रिएट कर रखी हो एज कम्पेयर टू अस. Okay, promotional style we can also see. Sometime we can not, I don't want to say that you can copy, but you can take inspiration. Everybody do that, and sometime, or you can say right now in digital marketing market, it's very important to take the inspiration from the brand for the competitors who are already successful in the market. So it will help you to grow also. Next. आरजू, कैन यू प्लीज टेल मी कि मैं सेशन कब तक चला, मतलब कब तक हम इसको कर सकते हैं. Prati, you can wrap up it around 4:10 or 4:15 if that ठीक है, possible. मैं Like, थोड़ा how much time do you फास्ट. need? 4:15 तक आई Sorry, रैप अप. my bad, 5:15. हाँ सॉरी, 5:15. ओके, फाइन फाइन फाइन. So, ओके देन आई. is it fine for you or do you need like more time? नो नो नो, आई ट्राई टू रैप अप. Okay, then it's ओके. fine. हाँ,
नेक्स्ट हम फोर्थ स्टेप पे चल रहे थे, दैट इज सॉर्ट एनालिसिस। बेसिक इसमें एक एग्जांपल के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू। सो व्हाट इज सॉर्ट एनालिसिस? सॉर्ट एनालिसिस इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्ट्रेंथ, व्हाट आर द वीकनेस, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर द फ्यूचर एंड द थ्रेट फॉर द फ्यूचर ऑफ योर ब्रांड। सो इधर अभी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ टेस्ला। सो टेस्ला का अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट डू यू डू एक्सेप्शनली वेल? सो अगर किसी को पता है या नहीं, आई डोंट नो, टेस्ला इज द फर्स्ट ब्रांड जिसने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया था। सो डेफिनेटली दे डिड अ वेरी एक्सेप्शनल वेल जॉब, जिस वजह से उनका एक यूएसपी क्रिएट हुआ। और उनका स्ट्रेंथ सबसे बड़ा यही था कि उनका बहुत ही इनोवेटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल था। बहुत अच्छी उन्होंने अपनी ब्रांड इमेज क्रिएट हुई उससे। और डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रांग लीडरशिप थी एलॉन मस्क की, ठीक है, जिनका ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल ब्रांड्स चलते थे। तो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड। तो आपको क्या अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आपने आपका स्ट्रेंथ क्या है ब्रांड का। मान लीजिए आप ऐसा कोई ज्वेलरी स्टोर है जो हैंडमेड ज्वेलरी बनाते हैं। सो योर व्हाट योर स्ट्रेंथ विल बी, योर स्ट्रेंथ मोस्ट ऑफ द टाइम योर स्ट्रेंथ विल बी योर यूएसपी, जो भी बेस्ट व्हाट यू आर ऑफरिंग एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स और योर कॉम्पिटिटर्स। अब वीकनेस की बात करते हैं, तो हमें वो चीज़ हमारे ब्रांड की समझनी ऑलरेडी ज़रूरी होती है, सो दैट हम उसको केटर कर पाएँ प्रॉपरली। अगर सेम ही एग्जांपल हम लेके चलेंगे, तो टेस्ला का प्रोडक्शन चैलेंज था कि स्केल उसका प्रॉपर नहीं था, या न्यू मॉडल्स के साथ वो मतलब इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करता था, डिले हो जाता था इस वजह से। और अभी भी ये इश्यूज उसके रहते हैं। प्राइस ऑब्वियसली इट्स वेरी हाई, प्राइस उसकी बहुत हाई है, तो कॉम्पिटिटर्स उसका फ़ायदा उठाए ऑब्वियसली। पहले कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजुअली brands don't produce. Now brands are now, or from last so many years, brands are producing EVs, and right now it become a very trend, and every brand is coming up with an electric vehicle with the new technologies. So because the price was high, then opportunity is definitely something that you should do in future. क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपके ब्रांड के साथ आप फ्यूचर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं, तो टेस्ला ने अपने आप को ग्लोबली एक्सपेंड करने की कोशिश की और कर रहा है स्टिल देर आर फ्यू कंट्रीज दैट्स नॉट पॉसिबल टेस्ला टू कम इन। दैट्स सम वन टेस्ला इंडिया में भी आने वाला था, बट देन दे पोस्टपोन दैट बिकॉज ऑफ फ्यू XYZ रीजन्स। थ्रेट्स इज समथिंग कि हम फ्यूचर में हमारे कौन सा ऐसी चीज़ है जो अगर हम अभी जो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं ना, हम हमारा ब्रांड फ्यूचर में अगर प्रोग्रेसिव होता है, प्रोग्रेस करता है, तो कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है, जो हमारे लिए थ्रेट हो सकती हैं। जैसे कि टेस्ला के लिए सबसे बड़ा थ्रेट यही निकला कि और ब्रांड्स ने भी, मैन्युफैक्चरर्स ने भी अपना AV व्हीकल निकाल दिया। देन उसके अलावा टैक्सेस की हम बात करें, तो गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की वजह से भी उनको काफ़ी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। तो ये चीज़ें आप अगर प्रायरली आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो इट्स बेटर टू फॉर योर ब्रांड। देन ऑब्वियसली फिफ्थ थिंग इज यू हैव टू सेट योर बजट, कि आपका क्या बजट आपको रखना है डिजिटल मार्केटिंग करते टाइम। देन आती है मेन चीज, दैट इज चूज योर डिजिटल मार्केटिंग मेथड। अब बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग के मेथड हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या मुझे सारे मेथड्स पे जाना चाहिए? अब देखिए, SEO भी मैं कर रही हूँ, गुड, मैं एड्स भी चला रही हूँ। अब सोशल मीडिया की सबसे मेन बात करते हैं, तो क्या सोशल मीडिया में इतने सारे चैनल्स हैं? ब्रांड्स यूजुअली क्या करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे कुछ प्रमोशन कर रहे हैं, और वही, ये आई एम टॉकिंग अबाउट विद दिस फॉर अ वेरी स्मॉल ब्रांड पर्सपेक्टिव, कि वही चीज़ प्रमोट करने लग जाते हैं लिंक्डइन पे। समटाइम इट्स ओके फाइन, बट इज दैट ओके एवरी टाइम? नो, नाउ डेज यू हैव टू क्रिएट अ प्रॉपर कॉन्टेंट ऑन लिंक्डइन डिफरेंट। एक बहुत ही डिफरेंट वे में आपको लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट क्रिएट करना चाहिए एज कम्पेयर टू योर सोशल मीडिया, अदर सोशल मीडिया चैनल। सो इसी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगी कि हमें किस तरह से हमारे जो भी डिजिटल मार्केटिंग चैनल या मेथड हैं वो हमें ऑप्ट करने चाहिए। Yes, we can go for every method or every platform, but it's not required. It depend upon what type of brand you are catering, what type of brand you are promoting. Okay. अब कौन कौन से मेथड्स होते हैं जो सबको, हम आई गेस एवरीबडी नोज, SEO, सर्च इंजन, कंटेंट, एफिलेट, सोशल मीडिया, ईमेल एंड पेपर क्लिक। सो एक एक करके चलते हैं कि इन हमें किस तरह से ब्रांड्स को कौन से मेथड्स को किस वे में ऑप्ट करना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल लेती है SEO की मैं बात करती हूँ। अब SEO सिर्फ
रैंकिंग के ऊपर काम करता है, ऑब्वियसली ट्रैफिक के लिए किया जाता है, दैट्स ट्रू, ऑर्गेनिक होता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बट एसईओ के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जैसे कि मेरा ब्रांड ऐसा है जहाँ पे मैं अगर इंफॉर्मेटिवली चीज़ों को प्रमोट करूँगी, जैसे मैं ब्लॉग्स अगर प्रमोट करती हूँ एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्रमोटिंग अ पर्टिकुलर लिंक या पर्टिकुलर सर्विस, मुझे ज़्यादा फायदा मिले इन केस, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ब्लॉग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, अगर मेरा सर्विस ऐसा है कि बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ, मैं ब्लॉग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ। बट मेरा ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा नहीं है, तो मैं डायरेक्ट अपने जो सर्विस पेजेस हैं, डायरेक्ट लैंडिंग पेजेस जो भी मेरे हैं, उनके ऊपर मैं डायरेक्ट टारगेट कर सकती हूँ। ठीक है, फिर पीपीसी की या सर्च इंजन मार्केटिंग की मैं बात से दो जगह आ गया। ओके, तो हम इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली ये हम कब का हम हमें अब इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। पेपर क्लिक में सर्च ऐड भी होते हैं, पेपर क्लिक में पीमैक्स भी होते हैं, पेपर क्लिक में डिस्प्ले भी है, ठीक है, वीडियो भी है। तो क्या मुझे पेपर क्लिक के अंदर सारे मेथड्स के अंदर ऐड चलाने चाहिए? इज दैट फाइन? यस, इट इज़ फाइन, बट समटाइम हमारा बजट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनिशियली मैं चाहूँ सर्च पे चलाऊँ। अब बात आती है, अगर मेरा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो पी मैक्स इज़ द बेस्ट वे। अब ज़रूरी नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल भी हो तो मैं यूट्यूब ऐड भी चलाऊँ, और इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ब्रांड। कुछ ब्रांड्स, ठीक है, बिना यूट्यूब चैनल के भी दे आर सर्वाइविंग गुड। तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम यूट्यूब एड्स चलाएं। सो ठीक है, इस तरह से वी हैव टू डिसाइड कि हमें कौन कौन से किस तरह से पीपीसी भी करना है। देन सोशल मीडिया मार्केटिंग की हम बात करें, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया था, it's not good to promote same type of content on every channel. You have to understand, you have to pick according to the requirement of channel means social media is a channel, Instagram is a channel, LinkedIn is a channel, Snapchat is a channel, TikTok is also a channel. Why I am talking to TikTok in India? Because when you are promoting a brand internationally, TikTok still run in few countries, so you have to run ads on TikTok also while using a VPN. ओके, व्हाट इज एफिलेट मार्केटिंग? एफिलेट मार्केटिंग हमें कब करना चाहिए या हमें किन ब्रांड्स के लिए करना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि ब्रांड एक्चुअल में रिक्वायर्ड है या नहीं। पहले बहुत अच्छा ये चला करता था, अभी भी ठीक है, मतलब डिपेंड करता है ब्रांड। यूजुअली ई कॉमर्स ब्रांड्स जो होते हैं वो ज़्यादा एफिलेट मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट लास्ट इज ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग, इट्स फाइन इफ यू आर डूइंग इट, बट you should not expect that much result from email marketing sometime, because आज अगर हम बात करें तो हमारे ईमेल पे जो ऐड आते हैं या हमारे ईमेल बल्क में जो आता है, बहुत सारा तो स्पैम में चला जाता है। ठीक है, तो इट्स मे बी इट्स वर्थ इट, मे बी इट्स नॉट, इट डिपेंड्स, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ब्रांड। सो वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू टेल यू इन डिजिटल मार्केटिंग, कि हर चीज़ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड है। हर चीज़ प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड कैसे है कि आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो सकता है वो बहुत अमेजिंगली रिजल्ट दे, हो सकता है वो इनिशियली ना दे। तो हमें क्या है, हमें इसीलिए टाइम टू टाइम जितनी भी हमने स्ट्रैटेजी समझी वो हमें रिवैम्प करते रहना पड़ता है। हमें अगेन कुछ नया ब्रांड के अंदर यूएसपी क्रिएट करना पड़ता है, अगेन हमें कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना पड़ता है। तो हमें बार बार, दिस इज लाइक अ लूप। If it's going good, you can go with the same strategy. If it's not going good, you have to do the same thing again and understand the every points again. थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सारे मेथड्स का। 5 बज गए, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, लाइक एवरीबडी नो और सम आर न्यू, तो उनके लिए आई विल टेल यू। एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज बेसिकली व्हेन यू आर इंक्रीजिंग योर रैंकिंग ऑन गूगल सो दैट आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए। अब उसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको अपनी वेबसाइट में अच्छा कंटेंट डालना होता है, वेबसाइट का यूएक्स यूआई अच्छा करना होता है, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को बनाना होता है, वेबसाइट में एक लूप क्रिएट करना होता है, सो दैट इफ सम यूजर इज कमिंग ऑन एक्स लैंडिंग पेज, वहां से उसको कुछ और आप इंटरेस्टिंग पुश करें सो दैट वो यूजर दूसरे लिंक पे जाए, और इस तरह से आपका एक प्रॉपर आपका इंटरनल लिंक का एक स्ट्रक्चर क्रिएट हो। देन कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग सिर्फ रील बनाना नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं।
कि हम ब्लॉग्स के ऊपर जब करते हैं, लिंक्डइन पे आजकल न्यूज़लेटर्स बहुत चले हैं, आर्टिकल्स प्रमोशन बहुत चला है और बहुत अच्छा चलता है, वो हम करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कंटेंट मार्केटिंग। जब हम ब्लॉग्स प्रमोट करते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू हम एसईओ कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कंटेंट मार्केटिंग। दैन सोशल मीडिया मार्केटिंग, एवरीबडी नोज कि क्या क्या चीज़ें हम सोशल मीडिया में करते हैं, बहुत कुछ नया आता रहता है। सो उसको समझते हुए हमें चीज़ें फॉलो करना, ऑडियंस को समझते हुए फॉलो करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ईमेल मार्केटिंग, वही बल्क में हम अपना प्रमोशनल मेल्स जब करते हैं क्लाइंट को, अब उसमें वी कैन क्रिएट अ प्रॉपर टेम्पलेट, जिसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। जब भी हम ईमेल मार्केटिंग फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आई विल एक्सप्लेन दैट। कंटेंट मार्केटिंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन। पेपर क्लिक, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर क्लिक एडवर्टाइजमेंट पे बेस है। पेपर क्लिक होता क्या है, जब आप कुछ भी गूगल पे सर्च कर रहे हैं, वन एग्जांपल, तो दो तरह से सर्चेज आते हैं। वो एक सर्चेज आते हैं जहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होता, और एक सर्चेज आते हैं जिसके ऊपर स्पॉन्सर्ड मेंशन होता है। तो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि जहाँ भी, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो गूगल है, सर्च इंजन है, कहीं भी जहाँ पे स्पॉन्सर्ड मेंशन है, दैट मीन वो एडवर्टाइजमेंट है। सो पीपीसी उसी को कहते हैं। ठीक है, अब वो कैसे किया जाता है, वाया गूगल एडवर्ड वो हम करते हैं। कीवर्ड्स के ऊपर टारगेट करते हुए करते हैं। यूट्यूब वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो के ऊपर टारगेटिंग करते हुए करते हैं। ठीक है ना। देन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, द मोस्ट ट्रेंडिंग मार्केटिंग नाउ डेज दैट एवरीबडी इज डूइंग। Sorry, one thing that you need to understand, that influencer marketing, it's good, you are doing it, but I'll tell you one of my experience. Sometimes people do the influencer marketing without researching about the influencer. ठीक है, तो इन्फ्लुएंसर को पैसा भी दे दिया, सारी चीज़ हो गई, उसने वीडियो भी बना लिया, बट वो वीडियो का कोई रीच नहीं हुआ, कोई इंगेजमेंट नहीं हुआ, उससे कोई कन्वर्जन नहीं आया। क्यों हुआ ऐसा? बिकॉज हो सकता है उस पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर की जो ऑडियंस है वो आपके प्रोडक्ट से रेजोनेट ना कर पाए। सो उस अकॉर्डिंग भी हमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग समझनी और करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज डिटरमाइन योर अप्रोच विद द स्ट्रैटेजीज। ऑब्वियसली आपने जितनी भी आपने अप्रोच ली है, उसको आप जो भी मेथड आप चूज कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के, उसके अकॉर्डिंग सेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक एन एग्जांपल ऑफ एसईओ। व्हाट टास्क डू यू नीड टू कंप्लीट टू लॉन्च अ सक्सेसफुल एसईओ? क्या क्या आपको करना चाहिए? यू शुड कंडक्ट एन रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, improve the website load time, speed time, and mobile optimization, user friendly website. These are the few things. Title description, meta description, these are the things that you initially do for SEO. Same with social media. What you have to do, you have to create a content that is resonate with your type of with your brand types of audience, and XYZ. ओके, देन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कैलेंडर कैसे क्रिएट करें। अब मेरी एसईओ भी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने इसमें डाला है कि मुझे मेरा एक ब्रांड है ऑनलाइन ज्वेलरी स्टोर का, और आई वांट टू डू द एसईओ, एसएमओ, पेड मार्केटिंग एंड ईमेल मार्केटिंग फॉर दैट ब्रांड। तो व्हाट शुड आई डू? तो आई शुड क्रिएट अ सम कंटेंट कैलेंडर लाइक दिस। उसमें मैं क्या करूंगी, फर्स्ट वीक में मैंने पुट करा कि मैं सबसे पहले एसईओ में क्या करूंगी। ठीक है, मैं एसईओ में करूंगी भाई कीवर्ड रिसर्च आई विल स्टार्ट प्रमोटिंग द ब्लॉग रिगार्डिंग सम टॉप ज्वेलरी ट्रेंड उस मंथ का जो भी है। साथ ही साथ मैं एसएमओ पे भी क्या करूंगी, टॉप ज्वेलरी ब्रांड को आई विल प्रमोट ऑन एसएमओ ऑल्सो। सी होता क्या है ना, अगर आप सेम कुछ चीज़ें स्ट्रैटेजीज हर मेथड के अंदर अप्लाई करते हैं तो इट विल रियली वर्क्स। एसएमओ की अगर हम बात करें तो हम एसएमओ में, या सोशल मीडिया मार्केटिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात हो रही है, तो हम उसमें क्या करेंगे, हम रील्स बनाएंगे ज्वेलरी कलेक्शन या फिर टॉप ज्वेलरी ट्रेंड्स को लेके। और पेड मार्केटिंग में हम इनिशियली क्या करेंगे, अपना शॉपिंग एड्स या पीमैक्स एड रन करेंगे। और ईमेल में हम क्या करेंगे, एक ईमेल टेम्पलेट बनाएंगे, सेम टॉप बेस्ट ज्वेलरी जो भी हम प्रमोट कर रहे हैं उसके अंदर हम एक सीटीए बटन लगाएंगे और हम उसको पुश करेंगे बल्क ईमेल के थ्रू। ऐसे आप पूरा वीक का, पूरे मंथ का वीकली प्लान यू कैन क्रिएट, यू हैव टू क्रिएट, बट इट डिपेंड्स कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर रहे हैं। हमेशा कैलेंडर के साथ चलना इज वेरी गुड, सो दैट आपको पता रहे कि आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक प्रॉपर पेज पर हैं या नहीं। देन डेफिनेटली मेजर द रिजल्ट। अब रिजल्ट्स, जैसे मैंने पहले भी बोला था, डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ कन्वर्जन का मतलब सेल्स या लीड्स नहीं है।
कन्वर्जन बहुत, या और जो हमारा रिजल्ट्स है या हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, बहुत सारे तरह का होता है। जैसे मेरी हर लीड पे कितनी कॉस्ट आई, हर क्लिक पे कितनी कॉस्ट आई, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आया, ओवरऑल रिटर्न कितना आया। भाई मैंने 5 लाख के ऐड चलाए तो उसमें से कितना मेरा कन्वर्जन निकल के आया, ठीक है, मेरी टोटल नंबर ऑफ लीड्स कितनी आई, ठीक है, मेरा सर्च रैंकिंग यानी मेरे कितने कीवर्ड्स, मेरे जो मैंने डिसाइड किया था इनिशियली कि इतने गोल मैं लेके चल रही हूँ इस महीने, तो मेरे कितने रिसर्च कीवर्ड सर्च रैंकिंग के अंदर आए। देन कितना ट्रैफिक आया सोशल मीडिया पे, किस रीजन से आया, एंड हाउ किस टाइप ऑफ कंटेंट के ऊपर कितना ट्रैफिक आया। ये सारी चीजें वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो दिस इज द होल स्टेप बाय स्टेप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। लास्ट एक छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाहूंगी कि जब आप जॉब अगर जो लग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री में किस तरह से चलता है कंपनीज में। इधर एक कंपनी या तो एजेंसी हायर करती है या फ्रीलांसर हायर करती है। एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर होता है, उसके साथ कौन कौन से और लोग हैं जो इन सारी स्ट्रैटेजीज को सक्सेसफुल बनाते हैं। वन इज एसईओ स्पेशलिस्ट होता है, एक वन अनदर इज कंटेंट स्पेशलिस्ट, वन इज सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, देन पेड स्पेशलिस्ट, डेटा डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट। एनालिस्ट इज द वन हु अंडरस्टैंड और एनालाइज द होल मार्केट ऑफ योर brand, and sometime these roles are supported by agencies and the freelancers also. So when if you are planning to opt the career in digital marketing, so this is the flow in any company follow. Like these are the profiles that you can go according to your interest. uh, Social media SEO, paid marketing, there are different profile for different roles. सो आगे मैंने बस यही चीज़ एक्सप्लेन करी है कि किसका क्या रोल होता है। बाकी इज़ नॉट दैट डिफरेंट। तो बेसिकली होता यही है कि जो एनालिस्ट का क्या रोल मैं थोड़ा सा समझाई देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे। डायरेक्टर का यही रोल होता है सारी चीज़ें देखना। मैनेजर जो होता है वो टीम लीड करता है या टीम लीडर के ऊपर होता है। एग्जीक्यूटिव होते हैं जो डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं जो ट्रैक रखते हैं कि क्या चल रहा है प्रोजेक्ट के अंदर। कंटेंट मार्केटिंग जो सोशल मीडिया, ब्लॉग्स और इनके रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी क्रिएट करता है। एसईओ का बंदा वो होता है जो कि रैंकिंग के ऊपर वर्क करता है। इधर वो एसईओ का टीम लीड भी हो सकता है कंपनी वाइज, एसईओ का इंटर्न भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है। इंटर्न से शुरू होता है यूजुअली, फिर एग्जीक्यूटिव स्पेशलिस्ट, सीनियर एग्जीक्यूटिव, टीम लीड, इस तरह से। परफॉर्मेंस मार्केटिंग आजकल पीपीसी स्पेशलिस्ट को परफॉर्मेंस मार्केटर कहने लग गए हैं। तो बेसिकली जो पर्सन गूगल एड्स रन करता है, मेटा एड्स रन करता है, वो परफॉर्मेंस मार्केटर कहलाता है। सोशल मीडिया मैनेजर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट होता है जो सारा अंडरस्टैंड करता है मार्केट में क्या चल रहा है, सोशल मीडिया के क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है। एंड देर इज कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर जो डिजाइन करते हैं, वेब डेवलपर। सो बेसिकली इन सब रोल्स को मिला के जब काम किया जाता है, तब हम जितनी स्ट्रैटेजीज हमने समझी वो प्रॉपर फ्लो में चलती हैं और एक सक्सेसफुल कैंपेन बन पाता है, यार एक सक्सेसफुल ब्रांड क्रिएट हो पाता है। सो थैंक यू सो मच, दिस इज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम ओपन टू टेक क्वेश्चंस। हेलो, आप पूछ सकते हैं जिसको भी अगर कोई भी क्वेरी है। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग रिगार्डिंग, इफ दे हैव एनी कंफ्यूजन, दे वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग, एनी पर्टिकुलर पॉइंटर और एनीथिंग। हेलो। हेलो, यस रिमी। हाँ, यस मैम। मैम मुझे ये पूछना है कि जैसे मैं कोई कंटेंट, जैसे 1000 वर्ड्स का कोई कंटेंट है, हम्म। तो लाइक जैसे मैं अपने एसईओ अगर कर रही हूँ, तो जैसे मैं टाइटल हुआ, मेटा डिस्क्रिप्शन, आपका आवाज चला गया रिमी। हेलो। कितना हमें लाइक कीवर्ड डालना चाहिए, 1000 वर्ड्स है तो। और जैसे अगर टाइटल में जो कीवर्ड डाल रहे हैं वो क्या मेटा डिस्क्रिप्शन में तो खैर जरूरी है, और H1 में वो सेम कंटेंट में भी होना चाहिए वो कीवर्ड्स। हाँ सी, अब इसमें ना स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। लेट्स सी, आप या तो एक कीवर्ड्स के डिफरेंट वेरिएशन बनाओ,
जिसको हम्म। हम तेरे से क्लाउड क्रिएट करना कहते हैं कीवर्ड का। यस ठीक है। मैम। ठीक है, या तो आप वो कंटेंट के अंदर बनाओ। एक टूल मैं आपको बताती हूँ, सी ऐसा कोई ना वो नहीं है, बस इतना ध्यान रखना होता है कि है ना हमारा कीवर्ड स्टफ ना हो रहा हो बहुत ज्यादा। हाँ हाँ। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी जो आप कह रहे हो उसके लिए आई विल टेल यू अ टूल, जिस आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, जिसको हम हम्म। कीवर्ड डेंसिटी टूल कहते हैं। आर यू अवेयर अबाउट दैट? यस मैम। हाँ, तो कीवर्ड डेंसिटी टूल किस तरह से यूज करते हैं आपको पता है? काम क्या पर्पस है कीवर्ड डेंसिटी टूल यूज करने का? मैम मैं यूज तो नहीं की हूँ, बट मुझे इसके बारे में एक्चुअली मतलब ऐसे पता है कि क्या है ये। लाइक अच्छा। यहाँ पे हमारे ये कंटेंट में जैसे ये बताता है कि लाइक कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं हम्म। हुई है। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो होता क्या है इसके अंदर, इसमें ना ये बता देता है कि कितना अ, आपने कंटेंट लिख लिया। ठीक है, आपने हम्म। एक डायरेक्ट कीवर्ड तो यूज कर लिया, जैसे इस वेबसाइट की बात कर रहे हो तो मेरा डायरेक्ट कीवर्ड है बेस्ट ट्रैवल कंपनी इन हम्म। दुबई। ठीक यस है, मैम। अब उसके वेरिएशन के साथ मैं और कितने कीवर्ड्स क्रिएट कर सकती हूँ, वो भी एक चीज होती है। तो अब जैसे कि इसने क्या कर रखा है यहाँ पे देखिए, ये ट्रैवल एजेंसी इसका एक कीवर्ड होगा, वो इसने इसके अंदर ले लिया। ठीक है, अब उसी को इसने डिफरेंट वेरिएशन से, हो सकता है कि ट्रैवल अलग एजेंसी ऑफ बेस्ट एजेंसी कहीं पे मेंशन कर रखा हो। तो मैं इसमें अब दिखाती हूँ इस टूल का क्या पर्पस है तुमको। देखो यहाँ से मैं कॉपी करा कंटेंट, आप लिंक भी कॉपी कर सकते हो बट उससे कभी कभी दिखता नहीं है। आपका जो भी आपने कंटेंट लिखा है ना उसको लिखो, एक पैराग्राफ में ट्राई टू पुट वन कीवर्ड, उससे ज़्यादा नहीं। फिर उसके बाद आप उस कीवर्ड के वेरिएशन बनाओ या क्लाउड बनाओ उस कीवर्ड का, और देन यू शुड पुट दिस ऑन दिस पर्टिकुलर टूल। देखो इसको करके देखते हैं और चेक करो डेंसिटी। अब ये 3 वर्ड डेंसिटी 4 वर्ड डेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसने देखो क्या करा, प्लेसेस टू विजिट अजरबैजान। अब इसने बहुत ही इंफॉर्मेटिव वे में रेटिंग के साथ ये कीवर्ड डाल दिया, जो इसका कीवर्ड था विजिट अजरबैजान। ठीक है, देन इसका ये कीवर्ड वो ही इसने डिफरेंट वेरिएशन में यहाँ डाला। अब ये टेक्निकली स्टफिंग नहीं कहलाएगी। क्यों नहीं कहला रही है? क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दी है डिफरेंट वेज के साथ। कहीं पे उसने हो सकता है कहाँ गया, रिव्यू दे रखा हो। एक मिनट। हाँ, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पे इसने इंटरलिंकिंग करवा रखी है यस। मल्टीपल। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, कहीं पे उसने रिव्यू दे रखा हो और आप उन सारे कंटेंट को इसमें पुट करो और देखो कि जो आपका कीवर्ड है वो कितनी वेरिएशन के साथ कितनी बार रिपीट हो रहा है। ओके। 4 वर्ड कीवर्ड, 3 वर्ड कीवर्ड। सो ये टूल उसलिए यूज आता है कि जो आपने कीवर्ड यूज किया है ना, वो कीवर्ड कितनी फ्रीक्वेंसी, एफ का माने फ्रीक्वेंसी होता है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ वो यूज हो रहा है, और जो आपका पूरा कंटेंट है क्या उसमें, मान लो ये अजरबैजान जो एक मेन वर्ड है इसका, वो कितनी वेरिएशन के साथ इसका क्लाउड बन रहा है। तो देखो इसने कितने स्मार्टली सब जगह इसको यूज किया हुआ है। यस मैम। आया समझ? तो ये यस। कोई फिक्स रूल नहीं है कि मेरे को इतना बार इतना कीवर्ड इतने पैराग्राफ में यूज करना चाहिए। हाँ, ट्राई टू यूज वन कीवर्ड इन अ वन पैरा। अब आप उसको किस तरह से आपने उसके अराउंड कंटेंट बनाया है उस पर भी डिपेंड करता है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन था कि हम जो टाइटल डिस्क्रिप्शन यूज करते हैं किस में, इसके मेटा के अंदर जो यूज कर रहे हैं वो हम ब्लॉग पोस्ट में यूज कर सकते हैं क्या, यही पूछ रहे थे आप? नो मैम, वही मैं ये पूछ रही थी कि टाइटल में जो कीवर्ड्स है और मेटा डिस्क्रिप्शन में उस कीवर्ड्स को हमें कंटेंट में मतलब जरूरी है डालना, ये चीज। हाँ डेफिनेटली। हाँ सी हाँ। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि हम्म। आपका डेफिनेटली जो मेन कीवर्ड है ना, जिसका आपको लगता है कि इसका सबसे ज्यादा इसका मेन फोकस है, तो एक हम्म। लिंक के मल्टीपल कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो वो मेन फोकसेस आप टाइटल डिस्क्रिप्शन में डालिए, बाकी अदर जो कीवर्ड्स है यू कैन यूज इन कंटेंट। ओके। हम्म। यूजुअली ट्राई टू पुट कीवर्ड्स हायर सर्चेस वाले जो भी आप रैंक कराना हम्म। चाहते हो, उसको आप टाइटल डिस्क्रिप्शन और हेडिंग में डालो। ओके। हाँ। एनीवन, थैंक यू सो मच। कुछ और पूछना है? नो मैम। ओके। किसी और को कुछ और पूछना है? एनीवन? मैम वन मोर क्वेश्चन। हाँ बोलिए।
जैसे मैम अगर मैं जैसे वेबसाइट है उस पे कंटेंट सब कुछ जैसे ऑल टैग वगैरह सारा कुछ कर लिया, तो लाइक ये कंटेंट मतलब रैंक होने में कितना टाइम लगता है? इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं है बेटा। आज सॉरी रिमी, सो इसका क्या रहता है ना, आजकल एक तो गूगल की एल्गोरिदम इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है ना, सो हम्म। हमको डिपेंड करता है तुम जिस पर्टिकुलर चीज़ की बारे, जिस डोमेन की बात कर रही हो, किस चीज़ का डोमेन है। मैम मेरा भी लाइक ट्रैवल का ही है तो। ठीक है। तो हाँ। देखो ट्रैवल के अंदर ना सबसे अच्छा चलता, देखो कीवर्ड्स के ना वेराइटीज होती हैं, पढ़ा हम्म। होगा कि हमारा एक होता है इन्फो, मैं एक दिखाई देती हूँ, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड होता है, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होता है, पता होगा ना ये चीज़। यस यस। इंफॉर्मेटिव, नेविगेशन, कमर्शियल, ट्रांजैक्शनल, तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं, अब जैसे अगर ट्रैवल की बात करें तो अगर तुम्हारा ऐसा कोई ब्रांड है और तुम्हें उसका रैंकिंग अच्छा से लाना है, हम्म। और वो ब्रांड इंफॉर्मेशन के ऊपर ज़्यादा, अगर तुम देखो तो लोग उसके ऊपर ज़्यादा फोकस सर्च करते हैं। जैसे ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल, अगर मुझे कहीं घूमने जाना है ना, तो मैं कुछ ऐसा ज़रूर सर्च करूंगी कि बेस्ट रेस्टोरेंट टू विजिट इन वियतनाम, अगर मैं ट्रिप प्लान कर रही हूँ वियतनाम। इंफॉर्मेशनल। हाँ। तो इस सिचुएशन में अगर मेरा इस तरह का कोई बिजनेस है, तो हम्म। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के ऊपर इनिशियली फोकस करना चाहिए, बहुत जल्दी रैंक आएगी। ओके। जैसे मैं इसी ब्रांड का बताती हूँ, अब ये ब्रांड, तो इसको छोड़ देते हैं, एक ब्रांड ये है, इसका आई टेल यू। अब ये ब्रांड था, ये टोटली, अब ये इसने ना, इसका कंपटीशन बहुत हाई है, तो इसने अपना टोटल फोकस इंफॉर्मेशनल पे लगाया। इसका पिछले 2 साल हुए हैं और नाउ इसका ट्रैफिक 58K है, एंड इसका मोस्टली 64% जो कीवर्ड है ना वो इंफॉर्मेशनल ही है। ओके। अब ये कैसे पता चलेगा, आप कॉम्पिटिटर्स को देखो, हम्म। देखो कॉम्पिटिटर्स कौन से टाइप के इंटेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। ओके। अगर वो भी इंफॉर्मेशन पे फोकस करें तो इंफॉर्मेशनल जो कीवर्ड्स होते हैं, या हम्म। ब्लॉग के थ्रू जब हम रैंकिंग लाने की कोशिश करते हैं, तो वो थोड़ा जल्दी आती है। अच्छा। तो इसके लिए बेस्ट तरीका है कि आप सैमरश पे जाओ, अपने कॉम्पिटिटर को रिसर्च करो, देखो कि किस तरह के कीवर्ड टारगेट कर रहा है, कौन से इंटेंट पे वो फोकस कर रहा है, और मोस्टली उसके किस तरह के लिंक उसके रैंक करते हैं। अगर उसके भी ब्लॉग या इंफॉर्मेशनल तरह के ही कीवर्ड लिंक रैंक कर रहे हैं या पेजेस रैंक कर रहे हैं, तो यू शुड ऑल्सो गो विद दैट, व्हाट्स रॉन्ग। यस मैम। ठीक है। ओके, एनीवन, किसी और थैंक को यू। कुछ पूछना है? ओके, वेलकम। Ma'am, what does these mean? Like informational, navigational, Okay. those things. Uh, okay. So one thing I just wanted to ask, you are new with digital marketing course, or you already completed, or you are in middle? I'm new to this. You are new to this, so dear, this is a part of search engine optimization. So when you start your course certification, while in the search engine optimization topic, these things will gonna cover. So basically these are the uh, intent of your keywords, like what type of keywords intent you are focusing. Informative means information related, that let's see, uh, best places to visit in Dubai. This is information. Okay, what is navigation? When you want to navigate your brand, that sometimes people already know your brand, so they directly type your name. Transactional means book flight ticket for Vietnam. So these keywords are transactional intent keyword. Okay, so while when you start your certification or course in digital marketing, or this topic will gonna cover in SEO, so then you will understand in a proper deeper way. Right now I can just explain you in just in a brief way. Okay. Thank you. Anybody else? किसी और को कुछ पूछना है? हेलो, किसी और को? Students, if you have any queries, please ask right now, or like if you have any queries, you can put it in the chat box as well. And if everything is clear, you can show us thumbs up so that we can wrap up today's session.
I guess Arzu, everybody is done with their Yeah, queries. I guess, okay. Okay, students, if there are no queries from your side, please drop the feedback in the chat box. Like, how was today's session? So please do it right now. I'll repeat again. Everyone is requested to drop the feedback for today's session in the chat box. Students, please quickly drop your feedback in the chat box so that we can wrap up today's session. I hope you found this session fruitful. So if so, please drop the feedback. Okay, and they are sending me the direct message. Okay, no issues then. If anybody wants to have any Okay, other then we will wind up today's session here only. Thank you, students. Thank you, Krati ma'am, for this fruitful session. And we will see you in the next such sessions. Thank you, everyone.